So hey, welcome to Dynamic Creations Institute, your ultimate designations for engineering software training. At our institute, we are dedicated to providing top-notch instructions and guidance in a wide range of engineering software programs with a special focus on AutoCAD. Our team of expert trainees is committed to helping you develop your skills and excel in the world of engineering software. Whether you are a student or a working professional, we offer lifetime support and guidance to ensure your success. With our extensive collection of study material, ready-made blocks, and comprehensive training modules, you will have all the resources you need to master AutoCAD and other software programs. In addition to AutoCAD, we provide training in a various software programs such as Civil 3D, Revit, InfraWorks, Navisworks, ETABS, StatPros, and etc. And the most complete set of BIM modeling tools. Our courses cover everything from the basic to advanced level, catering to the needs of civil engineers, architects, engineering students, surveyors, in fact highway designers. At Dynamic Design Creations, we believe in leveraging and power of artificial intelligence to enhance your learning experience. With AI assistant engineer training, you will be able to work efficiently with AutoCAD and other software programs, saving both time and costs also. So here, I am Smriti Dhare, an expert trainer for AutoCAD, and I will be your guide throughout this course. With my extensive expertise in AutoCAD, I will take you through a comprehensive journey from the fundamental to advanced techniques. So, whether you are a beginner looking to kickstart your engineering career or a professional aiming to enhance your skills and expertise to thrive in the industry, join us now to unlock your full potential with Dynamic Design Creation Institute. Let's begin this exciting journey together. So here we go. Here we cover up these all topics or these all syllabus you suggest. सो यहाँ पे हम लोग सब कुछ सीखेंगे स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ऑटोकैड क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इससे क्या नॉलेज मिलेगा. देन हमारा इंट्रोडक्शन कि हम व्हाट इज ऑटोकैड, व्हाई ऑटोकैड, हम ऑटोकैड क्यों यूज कर रहे हैं या फिर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्यों है. देन हम पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन, ऑटोकैड सेटअप, जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा ऑटोकैड सेटअप कैसे करते हैं, डाउनलोड टू वेरिफिकेशन, ये सब कुछ मैं आपको इसमें सिखाऊंगी. नाउ देन बेसिक इंफॉर्मेशन, नाउ व्हाट इज ऑटोकैड, हाउ टू नो अबाउट ऑटोकैड, हाउ टू नो अबाउट वर्क स्पेस, ये सब कुछ मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में बताऊंगी. दैट वी ओपन अवर ऑटोकैड स्क्रीन, सो व्हाट वी गोना डू ऑन दिस. डिटेल स्टडी अबाउट वर्क स्पेस, आपके पास हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके वर्क स्पेस या फिर आपकी स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है, ताकि आपको हेल्प मिले जल्दी से जल्दी उस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए. नाउ हाउ टू सेट अवर वर्क स्पेस, मैं आपको कुछ लिमिट्स सेट करना सिखाऊंगी. हाउ टू ड्रॉ, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं, किस तरीके से एनोटेशन करते हैं, एडवांस स्टडी वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस पूरे ट्यूटोरियल में. सो यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं अपने ऑटोकैड स्क्रीन पर. सो here we have this screen. Now what is this, now what is these panels, what is these marks, and what is this cursor? So I'm gonna tell you that this is known as ribbon. इसको हम रिबन कहते हैं. ये हमारे पास होम में है, जिसमें ये शॉर्ट पैनल्स हैं, जो कि ड्रॉ का पैनल है, मॉडिफिकेशन का पैनल है, एनोटेशन का पैनल है, लेयर्स प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें ब्लॉक्स का पैनल है. ये सब कुछ, इन सबको हम कहते हैं रिबन. ये हमारा एप्लीकेशन मेन्यू है, जिसमें हमारा होम है, इंसर्ट है, एनोटेट है, पैरामीट्रिक है, व्यूज़ हैं, किस व्यू में हम देख सकते हैं अपनी ड्राइंग को, मैनेज है, आउटपुट्स है, ये सब कुछ, इसको हम एप्लीकेशन मेन्यू कहते हैं. ये हमारा रिबन है, ये हमारे पैनल्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे. ये आप देख रहे हैं राइट साइड, इसे
ये हमारा नेविगेशन बार्स है, जिसमें हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस हेल्प आता है, ये इससे क्या होता है और ये किस यूज़ आएगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देन ये इसका क्या यूज़ है, ये क्यों रोटेट करके हम क्या कर सकते हैं इससे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका क्या यूज़ है यहाँ पे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एंड देन ये नीचे ये कुछ ओपन है, कुछ क्लोज है, तो ऐसा क्यों है, ये कुछ ब्लू लाइट्स क्यों हैं, कुछ ऑफ क्यों है, कुछ ऑन क्यों है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लाइक ये है हमारी कमांड लाइन, सबसे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे हम कोई भी कमांड लिखेंगे तो ये यहाँ पे शो होगा। एंड कुछ लाइंस, कुछ कमांड्स इस तरीके की होती हैं कि अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट कीज यूज़ करें बट स्टिल हमको कमांड लाइन में देखना होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं आपको कुछ बताती हूँ। जैसे कि हमने ये ऑन किया है, अब ये हमारे पास काफ़ी वाइड एरिया है, ये हमारा एक्सेस है, ये हम 2D में प्लान कर रहे हैं, तो ये वाई एक्सेस हुआ, एक्स एक्सेस हुआ, सो ये काफ़ी वाइड है। अब हमको इसको एक पेज पे सेट करना है। अगर हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ये कितना भी ले लेते हैं, बट हम इसकी डायमेंशन फिक्स नहीं कर पाएंगे कि हम ये हमने कितने एरिया की ली है या फिर हमने कितना इसकी फीट है, कितनी इंचेस है, ये हम नहीं बता सकते। तो हम सबसे पहले इसको फिक्स करेंगे। सो फिक्स हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने उसमें अपने प्रेजेंटेशन में बताया हुआ है कि सबसे पहले हम यूनिट फिक्स करेंगे, जिसको हम डायरेक्टली सर्च करके एंटर करके यहाँ पे आ जाता है अपना ड्राइंग यूनिट्स। हम किस यूनिट में करेंगे, हम डेसिमल में यूनिट को सेट करेंगे या फिर आर्किटेक्चरल, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक्स है, ये सबके अपने अपने फीचर्स हैं, सब अपने अपने ड्राइंग के मुताबिक इनको सेट करते हैं। लाइक मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग करती हूँ तो जिसमें फीट्स एंड इंचेस में आ जाता है, ये सिंगल डॉट फीट है अपना एंड डबल डॉट इंचेस है। देन यहाँ पे हमने ये तो सेट कर दिया है, अब ये आ जाता है मिलीमीटर में है, बट नहीं, हमको तो फीट एंड इंचेस में चाहिए। देन हम इंचेस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, फीट में चाहिए तो हम इस साइन को यूज करेंगे। देन वी गोना डू सो हियर ओके। ये हमारी हो गई लिमिट सेट। अब हम कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा जाएगा फीट्स एंड इंचेस में। जैसे देख सकते हैं ये फीट एंड इंचेस में आपकी वैल्यू आ रही है, बट ये तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ रही है। मीन्स ये तो 5 lakhs अराउंड, 52 lakhs अराउंड, ये ऐसा आ रहा है। तो हम इसकी लिमिट सेट करेंगे पहले। तो हम लिमिट को भी ऐसे ही सेट करेंगे, पहले डालेंगे एंटर। सबसे पहले ओरिजिन को हम लिखेंगे। ओरिजिन क्या होगा अपना, 0 to 0, ताकि हमारा सबसे पहले ओरिजिन फिक्स हो जाए। ओरिजिन फिक्स होगा देन हमारी ओरिजिन टू अदर एरिया फिक्स होगा। जैसे कि मुझे मान लीजिए 100 to 100 लेना है, तो ये हमने 100 to 100 सेट कर दिया, बट ये कुछ रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। अब कैसे पता चलेगा क्या हुआ है, तो उसके लिए कमांड आती है जूम ऑल। देन हम जूम जेड करेंगे, एंटर करेंगे एंड ए करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा जो हमने फिक्स किया हुआ है। ये एक की है। अब हमने लिमिट सेट करने के बाद आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आपको जूम ऑल करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब कुछ दिखेगा कि हाँ हमने ये कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है या फिर कोई वाइड एरिया नहीं शो हो रहा है। ये देख सकते हैं 10 फीट 4 इंचेस, 12 फीट 14 फीट 7 इंचेस। इस ऐसे ही आप अपने ही ड्राइंग के हिसाब से आप अपना एरिया फिक्स कर सकते हैं। लाइक मुझे मान लीजिए काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए, तो मैं 1000 का करती हूँ, 1000। अभी हमने क्या नहीं हुआ चेंज, देन जूम एंड आउट, तो ये हमारा एरिया बड़ा हो गया। अब हम कुछ भी क्लिक करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा बड़ा हो गया, 149 फीट्स, ये सब कुछ आ गया। सो ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं हमारी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले, कि हमारी लिमिट एंड यूनिट सेट होनी चाहिए पहले से, ताकि हम जब उनको स्टार्ट करें या फिर हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करें तो हमारे लिए कोई इशू ना हो। अब हमने कर दिया, बट हमको ये एरिया काफ़ी, वर्क स्पेस जो हमारा है वो काफ़ी बड़ा है, तो हमको फिर ड्राइंग्स बार बार जूम करना पड़ रहा है, जूम आउट करना पड़ रहा है, जूम इन करना पड़ रहा है। इस वजह से पहले ये लिमिट सेट करनी होती है।
देन हम कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है अपनी पास, लाइक ऑप्शन में जाएंगे तो हमने ये जो कर्सर लिया हुआ है, कर्सर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये पिक बॉक्स कहते हैं इसको, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरीके का भी साइज चाहिए, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है। मैं भी इतना सेट करती हूँ। देन ये हमारा जो कर्सर है, कर्सर की साइज ये सेट हो गया है ना। देन हम जस्ट अप्लाई एंड ओके, ये आ गया। जब आप इंस्टॉल करेंगे अपना ऑटोकैड तो ये कर्सर काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो उसको चेंज करने के लिए कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि हमारी ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, तो हमको चूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका साइज़ अपने सुटेबल के हिसाब से आप ये चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। और भी अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाते हैं तो ये यहाँ पे देखिए फाइल्स हैं, डिस्प्लेज हैं, ओपन एंड सेव्स करके, प्लॉट एंड पब्लिश है, सिस्टम है, यूज़र प्रेफरेंस है, ड्राफ्टिंग है, 3D मॉडलिंग है, सेक्शन है, प्रोफाइल है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, काफ़ी सारी एडिटिंग्स हैं जो करनी होती है। वो सब कुछ हम लोग आराम से जो ट्यूटोरियल सब मैं आपको बताऊंगी उसमें डिस्कस करते जाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरीके से ड्राइंग करेंगे या फिर क्या यूज़ है हमारे इन सब का। अब जैसे कि ये वर्क स्पेस है, इस वर्क स्पेस में हमने कमांड लाइन का देखा, क्योंकि हम इसमें सारी कमांड्स लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट कमांड लाइन की ज़रूरत पड़ती है। हम देख सकते हैं हमने क्या कमांड किस टाइम पे कैसे यूज़ किया हुआ है। सो ये यहाँ पे है। अब हमको अपना ये जो 2D वायर फ्रेम लिखा है, ये क्या है, ये 2D ये व्यू है। देन ये हम इस पे देख सकते हैं टॉप, यहाँ पे लिखा हुआ ये टॉप व्यू है। हम बॉटम व्यू भी देख सकते हैं इसका। देन लेफ्ट व्यू, यस लेफ्ट व्यू, हम राइट व्यू, इसका जो भी व्यू हम देखना है। अब हमने कोई भी ड्राइंग बनाई है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जस्ट क्लिक दिस बटन दैट हमको टॉप व्यू देखना है, बॉटम व्यू देखना है, जस्ट इसको क्लिक किया एंड वी कैन सी हियर। नाउ दिस इज द रोटेशनल, इसको हम रोटेट करते हैं। अब इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि ये हम टॉप व्यू तो है, बट हम लाइक मान लीजिए मुझे साउथ साइड देखना है तो मैं इसे रोटेट करके देख सकती हूँ मेरी ड्राइंग साउथ साइड कैसी लग रही है। इस तरीके से ये कुछ नेविगेशन बार्स हैं, ये पेन है, इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमको अपनी फाइल, यहाँ पे हमने कोई ड्राइंग बनाई है, हमको यहाँ पे दूसरी ड्राइंग बनानी है, तो जस्ट ड्रैग एंड शिफ्ट टाइप्स। ये 3D के लिए यूज होगा। ये हमारा ऑर्बिट है जिसको हम पूरा रोटेट करके देख सकते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। हमने पहले लाइन कमांड लिया, अब ये इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने डाल दिया, मुझे लाइन चाहिए मान लीजिए 70 फीट्स, 70 फीट्स एंटर। ये 70 फीट्स की हो गई, बट ये सब टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो नीचे मॉडल्स लिखे हुए हैं, इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको हमको ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। अब ये मान लीजिए ये सब कुछ ऐसा हो रहा है, लाइंस अलाइन नहीं है हमारे पास। अब मैंने ये ऑर्थो मोड ऑन किया है, ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद हमारी लाइन सीधी स्ट्रेट क्लिक होगी। हमने 90 डिग्री एंगल लिया, हमारा स्ट्रेट हुआ। हमने ये लाइन सिर्फ स्ट्रेट जाएगी, अब कोई कर्व नहीं आएगा। सॉरी, कर्व तो आता नहीं है इसमें, बट हाँ कोई भी आपके पास टेढ़ी लाइन नहीं होगी इसमें। ऑर्थो मोड 90 डिग्री इस पे लिखा भी हुआ है, ऑर्थो रेस्ट्रिक्ट कस्टमर ऑर्थो मोड 90 डिग्री ही एंगल बनेगा इसका। देख सकते हैं ये सारी स्ट्रेट लाइंस है जिस हिसाब से हमको चाहिए। हमने मान लीजिए इसी से हमने एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने लाइन लिया। एक ट्रिक भी, एक तरीका होता है, लाइक मैंने लाइन कमांड ली है, हमने इसको, चलिए पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये मैंने किया और मैंने ये यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब मुझे ये इससे एग्जिट चाहिए, एग्जिट लेने के लिए स्पेस दबा सकती हूँ। और मुझे ये वापस से कमांड चाहिए, इस साइड मुझे बनाना है, मुझे वापस से कमांड चाहिए, तो स्पेस वापस दबाकर। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे हम अपनी ड्राइंग को जल्दी बना सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी। अब ये लाइंस का हो गया। देन ये क्या है, पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलीलाइन।
तो ये पॉलीलाइन किस तरीके से यूज होती है, देखिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। हाँ, पॉलीलाइन स्ट्रेट लाइन हो गई। अब अगर हमने ऑर्थोमोड हटा दिया तो वही हमारी अलाइंड लाइन हो गई, हम इसको अलाइन कर सकते हैं। बट पॉलीलाइन की एक खास बात कि हम इसमें आर्क लगा सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, इसको हम कुछ विड्थ भी ले सकते हैं इस पॉलीलाइन में। लाइक मैंने आर्क चूज किया। अब मैंने आपको बोला था कमांड लाइन की क्यों नीड पड़ती है। अब मैंने पॉलीलाइन तो सर्च की हुई है, बट यहाँ पे मुझे कमांड लाइन में जाके आर्क क्लिक करना होगा। हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, बट ये हम क्लिक करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर कर दिखता है। अब मुझे ये आर्क चाहिए तो मैंने जस्ट इस तरीके से आर्क बना दिया। अब इसको हम जिस भी मोल्ड में डालेंगे वो उस तरीके का बन जाएगा। ये पूरा आर्क डिज़ाइन हो रहा है। पॉलीलाइन का ये एक बेनिफिट है कि ये हम इस तरीके से आर्क बना सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए लाइन ही चाहिए, देन मैंने वापस से लाइन किया एंड लाइन आ गई। ऑर्थो मोड ऑन कर लिया, स्ट्रेट लाइन आ गई इस तरीके से। नाउ एग्जिट। अब लाइन एंड पॉलीलाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस कि हमको जानना है कि ये पॉलीलाइन है या फिर लाइन है। अब विदाउट आर्क्स अगर हम लाइन को देखते हैं तो लाइन का एक लाइन इंडिविजुअल लाइन है यहाँ पे। अब ये मैंने बनाया तो एक ही ड्रॉ से है, बट ये सारी इंडिविजुअल लाइंस है। ये मैंने रेक्टेंगल जो दिख रहा है इसकी भी इंडिविजुअल लाइंस है। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल की एक सिंगल लाइन है। मैंने एक से बनाया है तो ये पूरा सिर्फ सिंगल एक ही सिलेक्ट होगा। हम इसको तोड़ सकते हैं, वो एक फर्दर स्टेप होगा। बट ये पॉलीलाइन का एक स्टेप, पॉलीलाइन का ये है जो कि हमारा एक सिंगल चूज है। हम इसको जस्ट एक क्लिक से भी पूरा अपनी ड्राइंग को कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग को डिलीट और सेव एंड समथिंग कर सकते हैं। बट लाइन में ऐसा नहीं होता है। लाइन को हमें एक एक चूज करना पड़ता है, या फिर ऐसे चूज करिए या फिर कैसे भी चूज करिए। तो ये जैसे कि ये सर्कल है। अब सर्कल इसमें हमारे पास रेडियस आ गया, रेडियस से लिया हुआ है। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। डायमीटर से डायमीटर्स को लेंगे तो ये हमको पूरा डायमीटर दिखेगा। देखिए, तो ये कुछ और भी तरीके हैं, ये कुछ हमारे मॉडिफिकेशन के तरीके हैं, कॉपी करने का तरीका है। हमने इसको जस्ट सिलेक्ट किया एंड देन कॉपी किया, तो हमने इसको जस्ट कॉपी कर लिया सो मैनी टाइम्स। ये एनोटेशंस है, वो हमको टेक्स्ट लिखना है, डायमेंशन लिखना है। तो ये पूरा आपका एक ऑटोकैड का डिस्क्रिप्शन है कि आप अपनी स्क्रीन पर क्या देखेंगे, आपका यहाँ पे क्या यूजेस आएंगे, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में बताएंगे आपको। सो नाउ हियर आर सम ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या क्या सीख कर जाएंगे यहाँ से। देन मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन। ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड से हम 2D डिज़ाइन कर सकते हैं, 3D डिज़ाइन कर सकते हैं, एक काफ़ी वाइड रेंज में। एंड ये फर्स्टली हमारा 1982 में हमारा ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था, जो कि जॉन वेल्कर्स ने किया था। एंड ये ऑटोकैड इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वाई ऑटोकैड? और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है क्या, या फिर और कोई तरीका नहीं है क्या? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये सब लोग एक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमको ड्रॉ करनी है, मान लीजिए एज आई एम सिविल इंजीनियर, मुझे कोई भी प्लॉट को प्लॉट करना है अपने ऑटोकैड पे, मुझे कोई भी प्लान बनाना है किसी भी बिल्डिंग का, तो मैं ऑटोकैड पे यूज़ करूँगी। पहले जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था तो हम लोग हैंडमेड बनाया करते थे, सब कुछ हैंडमेड ड्राफ्टिंग करते थे। हैंड से ही हम लोग उसको एलिवेट कर रहे हैं, उसको सर्कल बना रहे हैं, पॉलीलाइंस बना रहे हैं। तो ये हमारा काफ़ी ईजी वे है अपने प्लान्स को बनाने के लिए। सो ये मैंने आपको बोला कि मैं आपको बताऊंगी कि ऑटोकैड कैसे सेटअप करते हैं, डाउनलोड से लेकर के पूरा आपके पास कंफर्मेशन तक। तो इस तरीके से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, लाइसेंस कैसे क्रिएट करना है आपको अपने ऑटोकैड पे। देन सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको ऑटोकैड पे आपको बताया ही दिया है कि आपका वर्क स्पेस पे आपके पास क्या क्या है। इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए, जैसे इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक एप्लीकेशन मेन्यू, क्विक एक्सेस बार टूल्स, रिबन, ड्राइंग एरिया, कमांड लाइन, टूल पैलेट्स एंड प्रॉपर्टीज पैलेट्स एंड नेविगेशन टूल्स। ये कुछ
कैटेगरीज जो मैंने आपको कुछ बता भी दी हैं एंड कुछ मैं आपको और बताऊंगी आगे। ये जैसा मैंने आपको दिखाया आपने ऑटोकैड पे डिटेल स्टडी, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। मैंने रिबन के बारे में आपको बताया, रिबन में छोटे छोटे पैनल्स होते हैं, तो यही जस्ट उसमें मैंशनड है। और कमांड लाइन के बारे में आपको बताया, ड्राइंग एरिया जहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे, एप्लीकेशन मेन्यू और जो कि मैंने आपको बताया होम फाइल वगैरह। देन क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे कि उसके नेम में ही क्विक लिखा हुआ है, तो हम क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, जस्ट हम सेव कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, ये कुछ क्विकली जस्ट क्लिक एंड सेव एज होता है। टूल पैलेट्स, प्रॉपर्टीज पैलेट, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो भी हमारा ट्यूटोरियल होगा उसमें। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई हैं। ड्राइंग टूल्स को मैंने आपको जस्ट ऐसे तो मैंने ड्राइंग टूल्स को आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है। मॉडिफिकेशन टूल्स को मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, लाइक कॉपी करके बताया हुआ था। सो ये मॉडिफिकेशन टूल्स हैं अपने सारे। एंड देन ये एनोटेशंस हैं जिसमें हम डायमेंशंस एंड टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा रिबन है। सो मैंने आपको उसमें यूनिक सेट करना बताया, लिमिट सेट करना बताया, ओरिजिन किस तरीके से हमको चाहिए, किधर साइड चाहिए, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। एंड ये मैं आगे ट्यूटोरियल में आपको और भी अच्छे से बताऊंगी, कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगी एंड जिससे आप क्विकली कर सकें इनको सेट। देन हाउ टू ड्रॉ, मैंने आपको बताया लाइंस ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ करना, पॉलीलाइंस ड्रॉ करना, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। एंड देन ये कुछ कमांड्स हैं जिससे हम अपनी ड्राइंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ये कुछ एनोटेशंस की कमांड्स है, लाइक डायमेंशन है, टेक्स्ट है, टेबल है, टेबल्स किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, कुछ एंट्रीज करने के लिए। सो ये कुछ कमांड्स है एनोटेशन के लिए। एंड कुछ एडवांस स्टडी है, लाइक कुछ जो हम कोई भी प्लान ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक मुझे एक बिल्डिंग का प्लान ड्रॉ करना है, उसमें हमको क्या क्या नीड्स लगेंगी कोई भी कमांड्स यूज करने के। लाइक प्लान ड्रॉ किया, बट हमने ये जस्ट रेक्टेंगल, सर्कल ये सब यूज करके बना तो लिया, बट अब मैं उसको स्पेसिफाई किस तरीके से नेम्स दूंगी कि ये मेरा एलिमेंट्स है, ये मेरी डोर है, ये सब कुछ किस तरीके से मैं उनको बताऊंगी। लाइक लेयर प्रॉपर्टीज है, हम लेयर्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसमें ब्लॉक्स कैसे बनाना है, हैचिंग क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, स्टेयर्स कैसे बनाते हैं, ऑफसेट कैसे देते हैं, ऑफसेट क्यों देते हैं हम, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। स्केलिंग कैसे करते हैं, एलिवेशन कैसे करते हैं। सो नाउ हियर इज प्रोजेक्ट। व्हाट इज प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट्स का इन सब में क्या काम है? प्रोजेक्ट मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ये आपका ट्यूटोरियल का बहुत बड़ा पार्ट है। जब तक मैं आपको प्रोजेक्ट्स नहीं दूंगी, जब तक मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगी, तब तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, या फिर आप उस चीज़ को सीखने के लिए उतना मोटिवेट नहीं होंगे, उतना उत्साहित नहीं होंगे जो कि आपको प्रोजेक्ट देखकर होगा। कि आपके पास डेली न्यू चैलेंजेस आएंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। इसलिए आपके लिए प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं डायनेमिक क्रिएशन की तरफ से। देन मैं कुछ आपको शॉर्टकट कीज दूंगी। देन बेसिक 3D सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो कि आप देख सकते हैं कि हमने अपना प्लान बना तो लिया, बट उसको अगर हम 3D में देख सकते हैं तो किस तरीके से देखेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।